unit that we consider, supplementary unit that we consider is a solid angle. Okay, it's a solid angle. Now this solid angle is represented by d omega basically. Okay, now if I want to go ahead with what is d omega is basically the area which you are observing. It is the ratio of area which you are observing to the square of the radius. आप जो एरिया देख रहे हो स्फीयर का, वो पार्ट से स्क्वायर ऑफ द रेडियस विल बी योर, the ratio will be your d omega, that is your solid angle. Now if you look at the sphere, so one part of the sphere is something like this, and the another part of the sphere is something like this, going from inside to outside. So total angle, if you observe the total angle of this total sphere, will be one because of vertical circle and one because of the horizontal circle. So your area of the sphere basically, if I want to calculate the total omega, the area of the sphere is 4 pi r square divided by r square. This r got cancelled. It means the total angle covered by the sphere is 4 pi. And how it is 4 pi? You can observe it. 2 pi from this circle and 2 pi from this circle. So total angle covered will be 4 pi. This is how it goes. Is this clear what I said? दो एंगल्स काम कर रहे हैं. आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है. मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है? हाँ मिस. यस मैम. अभी भी? अच्छा ठीक है, अभी भी ब्रेक हो रहा है? नहीं. मिस तो स्क्रीन तो ब्लर दिख रहा है. अब ठीक है? Is this okay now? Yes ma'am. ठीक है. So one is this angle and one is this total angle. So total angle is 2 pi plus 2 pi which is equal to 4 pi. This is how you can understand. Basically इसके 4 pi लाने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं. But I am not going into that detail. I am just explaining you the total angle covered by the sphere is all because of the two circles, two types of circles basically. So that's why it goes to 4 pi. Because there in sphere you need to deal with the two angles. There are two angles that works in sphere. एक हॉरिजॉन्टल सर्कल के लिए वर्क करता है और एक वर्टिकल सर्कल के लिए काम करता है और एक हॉरिजॉन्टल सर्कल के लिए काम करता है. Is this clear what I said? Is this clear what I said, everyone? Yes, श्री प्रसाद तुमको समझा मैंने क्या Yes कहा? ma'am. Yes yes. तो बेसिकली आपको सिर्फ फिलहाल इसके पीछे ना आई कैन एक्सप्लेन यू इन अ डिटेल कि ये कैसे सॉल्व हुआ, क्या हुआ. आई कैन एक्सप्लेन यू, बट for now it is not required. Just you have to remember that whenever we talk about the solid angle, it will be 4 pi because sphere cover 4 pi all because of the two angles. एक हॉरिजॉन्टल सर्कल के लिए और एक वर्टिकल सर्कल के लिए. ये इतना ही आपको याद रखना है. समझ में आया? और वहीं पे अगर आप सिर्फ सर्कल की बात करते हो, इफ यू टॉक अबाउट अ प्लेन एंगल, अगर आप प्लेन एंगल की बात करते हो, सो ऑफ कोर्स इट इज अ 2D. सो आपका सर्कल इट विल परफॉर्म 2 pi r by r. So the total angle covered in a circle is 2 pi. एक ही सर्कल होता है ना इसमें, और इसमें दो सर्कल्स कंट्रीब्यूट करके एक स्फीयर बना रहे हैं. दो टाइप के सर्कल कंट्रीब्यूट करके स्फीयर बना रहे हैं. दो टाइप के एंगल्स कंट्रीब्यूट करके स्फीयर बनाते हैं. सो दैट इज व्हाई इट गोस टू 4 pi. एक एंगल ऐसा चलता है और एक एंगल ऐसा सो के चलता है. सो जो ऐसे खड़े होकर चलता है उसका 2 pi और जो सो के चलता है उसका 2 pi. सो 2 pi and 2 pi goes to the 4 pi. मैम तो क्वेश्चंस में भी हम लोग को डी ओमेगा फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे क्या? नहीं, डायरेक्टली वो जब आप आगे जाओगे हायर स्टैंडर्ड्स में ना, वो आपको ऐसे स्फेरिकल वर्ल्ड में लेके जाएंगे और सीधा बोलेंगे कि आई एम यूजिंग द सॉलिड एंगल इन स्फेरिकल वर्ल्ड. तो आपको सीधा क्लिक होना चाहिए कि ओके व्हेन वी आर इन द स्फेरिकल वर्ल्ड द सॉलिड एंगल विल गो टू 4 pi बिकॉज कंट्रीब्यूशन 4 pi का होता है. एंड अगर वो बोलते हैं सर्कुलर वर्ल्ड में जाए तो ऑफ कोर्स इट विल बी 2 pi. दिस इज क्लियर व्हाट आई सेड? आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसको फेस करोगे. Anything else anyone want, or should I go ahead with the discussion with the sums? जो मुझे लगता है कि डिस्कस करने चाहिए. Yes miss. चलो आगे बढ़ते हैं. और किसी को कहीं पर भी कुछ भी डाउट नहीं है? सबके कैमरास क्यों ऑफ हो गए? मैंने कहा कैमरास ऑफ करो. अच्छा तुम लोग के घर पे लाइट नहीं है क्या? सबके घर पे लाइट है? हाँ तो फिर कैमरास ऑन रखो.
लाइट नहीं है तो कैमरा ऑफ कर सकते हो, क्योंकि मे बी आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, चलो सम्स के साथ आगे बढ़े। लेट्स गो अहेड विद द सम्स। द फर्स्ट सम आई एम डीलिंग विद, सी बच्चों, अगर आपको कोई ऐसा सम दे रहा है, इफ देयर इज एनी सम जिसमें उसने बोला है कि आपको सिग्निफिकेंट करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ जाना है, ऐसे बहुत सारे सम्स है उसमें जिसमें उसने बोला है कि करेक्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स तक जाओ, तो ये बात याद रखो कि सम में सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर कितना है। जो भी आपको डाटा दिया है उसमें सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर कितना है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द सम नंबर फर्स्ट। आपको बोल रहा है द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज 2.14 सेंटीमीटर। आपको डायमीटर दिया है स्फीयर का 2.14 सेंटीमीटर, ओके। और आपको बोल रहा है कि वॉल्यूम निकालो स्फीयर का, कैलकुलेट द वॉल्यूम। अब हमको पता है कि रेडियस क्या होता है 2.14 सॉरी डिवाइडेड बाय 2, दैट इज डायमीटर बाय 2। इज दिस करेक्ट व्हाट आई सेड, है ना? सो Yes, miss. दिस इज बेसिकली योर 2.14 डिवाइड बाय 2 करोगे तो इट इज बेसिकली योर 2.07, है ना? 1.07, miss. Sorry, 1.07. Yeah, it is 1.07. So 1.07. So volume का formula is 4/3 pi r cube. Okay, आप r की जगह पे r डाल दोगे and you will come to the value of 5.13211 and so on. ऐसे बहुत सारे values आएंगे with a centimeter cube at the end. Okay, अब वो correct significant figure तक जाने के लिए बोल रहा है। मेरे को जो डाटा दिया है उसका significant figure कितना है? एक ही डाटा दिया है, उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? इसका वैल्यू बताओ सिग्निफिकेंट नंबर का। कितना सिग्निफिकेंट नंबर है डायमीटर का? 3. बोलो। 3. 3। मतलब मेरा आंसर भी 3 की वैल्यू में आना चाहिए। माय आंसर शुड गो फॉर द सिग्निफिकेंट नंबर विथ 3 सिग्निफिकेंट नंबर, ओके। अब यहाँ पर हम लोग राउंड ऑफ का भी यूज करते हुए जाएंगे और सिग्निफिकेंट फिगर, परफेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर के कंडीशन पे भी जाएंगे। तो राउंड ऑफ करूँ तो ये तो 1 है, तो ये तो चेंज नहीं होने वाला है। अब ये भी 1, ये 2 है, ये भी 1 है, सो देयर विल बी नो चेंज इन द 2। सो 2 से अभी ये 3 का चेंजेस देखते हैं। 3 चेंज होगा क्या? इसके आगे वाला ग्रेटर देन 5 है क्या? नहीं. नहीं। तो हमारा आंसर सिंपली आ जाएगा 5.13 सेंटीमीटर क्यूब। इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर भी है और प्रॉपर्ली राउंड ऑफ भी किया हुआ है। इज दिस करेक्ट? Yes. Yes, miss. चलो फटाफट ये सॉल्व करके लो सब लोग। चलो आंसर लाओ ये वाला, जल्दी जल्दी करो, फास्ट एवरीवन। सो आपको राउंड ऑफ, आपको परफेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर पे जाने के लिए प्रॉपर्ली राउंड ऑफ करना आना चाहिए कि बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। और आपके सम में जितने भी डाटा दिए हैं उसमें से सबसे मिनिमम जिस भी वैल्यू उसमें से सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा ना वो आपके आंसर का सिग्निफिकेंट फिगर होगा। मतलब अगर समझो 4 वैल्यूज आपको दे दी 1 2 3 4, ठीक है, एक का सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, एक का 3 है, एक का 4 है, एक का 5 है, तो आपका आंसर का सिग्निफिकेंट फिगर 2 होना चाहिए। कुछ समझे मैंने क्या कहा? समझा? अगर आपको 4 डाटा दिए हैं और एक का सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, एक का 3 है, एक का 4 है, एक का 5 है, तो आपके आंसर का सिग्निफिकेंट फिगर कितना जाना चाहिए? इट शुड गो टू व्हाट? बोलो बच्चों, इट शुड गो टू व्हाट? 2। इट शुड गो टू 2। मिनिमम वाला आपको सिग्निफिकेंट फिगर आपके आंसर के लिए रखना है। अगर आपको उसने बोला है कि करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर में आंसर चाहिए और आपने अगर करेक्ट सिग्निफिकेंट नंबर में आंसर नहीं दिया तो आपके आंसर्स रॉन्ग कंसीडर किए जाएंगे। कीप इट इन माइंड, आपका आंसर का मार्क्स कम हो जाएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर करते वक्त आपको राउंड ऑफ के कंडीशन और सिग्निफिकेंट फिगर की कंडीशन दोनों को ध्यान में लेकर चलना है कि अगर आप जब उसको कम करते जा रहे हो कि आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाए तो आपको राउंड ऑफ के सारे कंडीशंस लेके चलने हैं कि कुछ बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है या क्या कंडीशन है बढ़ाने का। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? समझ में आया सबको मैंने Yes, क्या miss. कहा? यस Yes, हेलो, miss. ठीक है। चलो ये फटाफट सॉल्व करते लो, देन वी विल गो टू नेक्स्ट सम। ओमकार आ गया? कर रहा हूँ टीचर। ओके करो करो जल्दी करो। जो भी डाटा दिया है उसका
उस डाटा में जिसका सबसे कम सिग्निफिकेंट, जितना भी सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर है वही आपके आंसर का सिग्निफिकेंट नंबर होना मैम चाहिए। वो आर क्यूब कैसे आया? वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला है, ओके ओके ओके। वॉल्यूम का फॉर्मूला इज 4/3 पाई आर क्यूब। आ गया? ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट घर के लिए रख दो। लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट। मेरी नोटबुक दिख रही है सबको? यस। ठीक है, चलो नेक्स्ट सम में क्या बोल रहा है जरा देखते हैं। सम नंबर सेकंड, आप अपनी बुक में देख लेना इनका नंबर्स क्या है, मुझे नहीं पता क्या नंबर्स है इनका, ये आपके टेक्सचुअल सम्स ही है। सो आपको एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसका लेंथ दिया है, दे हैव गिवन लेंथ एज 4.234 मीटर। आपका ब्रेथ दिया है उन्होंने 1.005 मीटर और आपकी हाइट दी है उन्होंने 2.01 सेंटीमीटर। सो इसको कन्वर्ट करो पहले मीटर में, करवाया ना मैंने कन्वर्शन फैक्टर, सिखाया कि नहीं? 1 Yes, सेंटीमीटर miss. की जगह पे मेरे को क्या डालना पड़ेगा? 1 सेंटीमीटर की जगह पे मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, बोलो जरा। मीटर में कन्वर्ट करना, मैंने कहा ना कि हमें खिचड़ी देखो सब 0.021. यस, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10⁻² मीटर। याद है मैंने कहा था सबसे पहले, मैंने आपको जब पढ़ाया था मैंने सिखाया था कि हमको एसआई और सीजीएस की खिचड़ी लेकर नहीं चलना है, या तो पूरा Yes, एसआई में miss. कर दो या तो पूरा सीजीएस में कर दो। याद आया? कुछ ऐसा बताया था मैंने, बताया था। हाँ मिस. और फिर मैंने आपको कन्वर्शन फैक्टर भी सिखाया था कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10⁻² मीटर होता है, तो 10 ये सेंटीमीटर की जगह पे मैंने 10⁻² मीटर डाल दिया। ये सबको समझ में आ रहा है? याद आ रहा है? ऐसा कुछ किया है हमने? देखो बच्चों मैंने इसमें Yes, बहुत miss. सारी, इसलिए मैंने ये सारी चीजें बहुत बार सिखाई क्योंकि हमको ये लाइफ टाइम यूज होने वाला है। जितने आप सम्स करोगे ना हमेशा ये सब चीजों का यूज पड़ने वाला है। तो फर्स्ट चैप्टर आपका एकदम कड़क होना चाहिए कि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना आए हमको, ठीक है? तो your height becomes 0.0201 meter, right? This is the value, ठीक है? अब मुझे बताओ जरा मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया और हाइट ये है। सो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा, कितना आएगा और कौन सा है इसमें? 3. इसके लिए मुझे आंसर चाहिए ना। 3 है। 3. किसका है 3? किसका 3 है सिग्निफिकेंट लेंथ फिगर? और हाइट का. लेंथ और हाइट दोनों का है ना, लेंथ और हाइट दोनों का। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, ब्रेथ का सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, बट हमने क्या पढ़ा है कि हमारा जो भी आंसर आता है, हम जो भी कैलकुलेट करें, अगर वो हमको बोल रहा है करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए, तो हमारा जो लेस नंबर वाला सिग्निफिकेंट फिगर है ना, हमको उसको यूज करना है। मतलब हमारा आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए, बोलो? 3. हमारा आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। जस्ट वेट फॉर। ओके, इज दिस एवरीवन क्लियर व्हाट आई सेड? समझा? सो Yes, miss. हमको एरिया तो पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं, याद है? हाउ यू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इनटू ब्रेथ। बट यहाँ पे तो हाइट भी दिया है, दैट इज थिकनेस भी दी है। They have given this height as actually your thickness. जैसे समझो अगर ये आपकी बुक है, राइट? ये बुक आपकी रेक्टेंगल है, तो इसके पास लेंथ है, इसके पास लेंथ है, इसके पास ब्रेथ है, और ये जो इसका ये है थिकनेस, ये इसकी हाइट होती है। तो यहाँ पर उन्होंने तीनों चीज दी है, लेंथ भी दिया है, ब्रेथ भी दिया है और हाइट भी दिया है, तो आपको वो तीनों यूज करना है। फॉर्मूला फॉर दिस इज 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस
लेंथ एंड हाइट, दैट इज LB plus BT plus LT. T is thickness here, और हाइट भी बोल सकते हो आप इसको। समझ में आया? हाइट Yes, इज miss. दिस इज योर हाइट। ये आपका लेंथ ब्रेथ, और ये जो आपका पार्ट है ना ये वाला, कि ये कितना थिक है, ये आपका हाइट होता है, तो आप इसको थिकनेस भी बोल सकते हो। बेसिकली थिकनेस इज मोर अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। सो यू विल सब्स्टिट्यूट, और आपका आंसर कौन से फॉर्म में आना चाहिए? व्हाट यू शुड गेट द आंसर, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए आंसर, बोलो। 3. तो अगर आप 3. इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर एज 8.721 मीटर स्क्वायर। बट अगर हमको इसको करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए तो हमको 3 के लिए लेके जाना पड़ेगा। अब जरा यहाँ पे देखो, ये 1 है ना, अगर मैं इसको हटाती हूँ तो ये आगे का नंबर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बोलो। नहीं ये जो बढ़ेगा। 2 है ये 1 से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। सो आपका आंसर होगा 8.72 मीटर स्क्वायर। समझ में आया सबको? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3, राइट? समझ गया? सो लिख के ले लो, और कैलकुलेशन का स्पेस छोड़ दो, कैलकुलेशन आपको खुद करना है। यू विल डू द कैलकुलेशन बाय योर ओन। चलो लिख के लो। मैं आंसर्स इसलिए लिखा के दे रही हूँ कि आपको समझ में आए कि राउंड ऑफ करते वक्त या सिग्निफिकेंट फिगर तक जाते वक्त आपको राउंड ऑफ के कंडीशंस भी याद रखने हैं, कि बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, उस हिसाब से आपको चलना है। मैम 1 मिनट स्क्रीन ऊपर करेंगे। ऊपर करूँ? ठीक है, दिस इज योर थिकनेस। मैम वो नीचे का पोर्शन दिखाओ ना। हो गया बच्चों? Yes, डन? miss. चलो लेट्स डू द नेक्स्ट सम। आपको एक न्यूक्लियस है, आपका एक एटम है, एटम का एटॉमिक मास नंबर कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका जो रेडियस दिया गया है वो दिया गया है 1.3 इंटू 10⁻⁻16 a⁻⁻⁵। ये रिलेशन है आपके एटॉमिक मास नंबर और न्यूक्लियस के रेडियस के बीच में। दिस इज अ रिलेशन। मैम ये कहाँ से आया? ये आपके हायर स्टैंडर्ड में जाके डिराइव होता है, अभी नहीं होता, अभी आपको डायरेक्ट इसको यूज करना है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आर जो होता है 1.3 इंटू 10⁻⁻16 होता है a⁻⁻⁵। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि अगर मैं ए, इफ आई कंसीडर द ए एस, मैं ए लेता हूँ 125, ए की वैल्यू मैंने कितनी ले ली है 125। ठीक है, हमको करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में आर का हमको
करेक्ट ऑर्डर निकालना है, करेक्ट ऑर्डर, ऑर्डर याद आया, 10 का पावर याद आया, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, हमको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है। चलो लेट्स सब्स्टिट्यूट। सो r is equals to 1.3 into 10 raised to minus 16, 125 raised to 1 by 3. अभी क्यूब रूट ऑफ दिस इज 1 by 3 is actually your cube root. Cube root of 125 is actually your 5. So 1.3 into 10 raised to minus 16 multiply by 5. इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द आंसर एज 6.5 into 16. समझे? Yes, miss. नाउ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या कंडीशन है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का? वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए? 0.525. 0.525 है क्या? 0.525 के बीच में नहीं. नो में क्या करना पड़ेगा? आगे शिफ्ट करना पड़ेगा कि पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा? पीछे लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा कि राइट साइड में? Right side. लेफ्ट साइड राइट साइड में कैसे? राइट साइड में शिफ्ट करोगे, इस साइड शिफ्ट करोगे तो 65 हो जाएगा। आएगा क्या कंडीशन के बीच में वो? नो में तो लेफ्ट साइड में करना पड़ेगा। इसके एक पावर को यूज कर ले। सो आर इज Yes. इक्वल टू आपका एक माइनस पावर यूज करोगे तो वो एक से शिफ्ट हो जाएगा। सो 0.65 into 10 raised to minus 15 मीटर। सो योर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज कितना है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलो। -15. यस -15। चलो लिख के ले लो, जल्दी जल्दी लिख के ले लो। चलो दिस इज द लास्ट सम। एक सम मैंने आपको सिर्फ नहीं सिखाया है क्योंकि वो भी सेम इसी के जैसा है, तो आपको वो खुद से ट्राई करना है। बाकी सारे टाइप्स मैंने करवाए हैं, जितने भी टाइप मैंने पेपर में मैंने नोटबुक में करवाए हैं, उन सारे टाइप्स में से एग्जाम में आएगा। कीप इट इन माइंड। सो अगर आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पेपर होता है तो बी प्रिपेयर्ड विद द सम्स पे बहुत फोकस्ड रहना। थियरी पे तो रहोगे ही ऑफकोर्स, सम्स जितने भी मैंने करवाए हैं सारे टाइप्स आएंगे। After this, we will start with mathematical method. हो जाए तो let me know. डन में None. So here basically your chapter number 1 gets over. ठीक है? Now we'll start with okay. For homework, keep this in mind. If you are doing the homework for three times, आपके notes में वो homeworks include मत करना। मतलब notes के continuation में homework मत लिखना। लिख दिया है? यस मैम। नो में नहीं में ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। जिसने लिख दिया वो याद रखो, कोई नहीं, छोड़ दो। जिसने नहीं लिखा है वो मत लिखना, क्योंकि बाद में आगे जाके आपको कंफ्यूजन होता है। एक ही चीज जब बार बार रिपीट होती है आपको समझ में नहीं आता कि कौन सा सम कितनी बार किया है, क्या किया है। सो आपका होमवर्क के लिए या तो Miss, आप क्या हुआ बोलो, लेकिन यू मिस 1 टाइम उसमें लिख के 2 टाइम उसमें लिख सकते क्या? दैट इज ओके, ओके चलेगा, चलेगा। एक बार उसमें लिख लो और 2 बार किसी होमवर्क नोटबुक में लिख लो। एक होमवर्क नोटबुक बना लो चाहिए तो, क्योंकि मैं बहुत सारे होमवर्क देने वाली हूँ, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, तो एक बार आप उसमें लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने 4 टाइम्स दिया तो 1 टाइम आप पेयर नोटबुक में लिख लो और बाकी का 3 टाइम्स आप रफ नोटबुक में लिख लो। यू कैन डू दैट, क्या आपके पास सॉल्व वाले होंगे। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। गिव द नेक्स्ट हेडिंग एस मैथमेटिकल मेथड्स। क्या हुआ? बोलो बोलो, आई कैन हियर यू। बस आपने आपकी आवाज अटक रही है मैम। अभी भी अटक रही है? यस मिस। एक मिनट रुक जाओ।
कैन यू हियर मी नाउ? Yes, miss. Yes, miss. ओके, सो मैंने ये बोला था कि अगर क्या हुआ? मिस आपने थोड़ी देर पहले क्या बोला? मेरा हाँ मैं network वही issue- रिपीट कर हाँ मैं वही रिपीट कर रही हूँ। मैंने ये बोला था कि अगर मैं आपको 4 बार होमवर्क देती हूँ तो एक बार आप फेयर नोटबुक में लिख लो और बाकी के 3 बार आप एक होमवर्क नोटबुक बनाकर उसमें लिख लो। समझा? फिर आपके फेयर नोटबुक में बहुत सारे होमवर्क्स की वजह से प्रॉब्लम नहीं होगा। वो कंटिन्यूएशन में एक फेयर नोटबुक आपके पास पड़ी रहेगी और ये नोटबुक आपको 11th और 12th दोनों में काम आने वाली है। ऐसा नहीं 11th खत्म हो गया तो नोटबुक का यूज खत्म हो गया। तो आपको नोटबुक्स अपने पास रखनी है क्योंकि जब आपके एंट्रेंस के एग्जाम होंगे तो आपको वो रिवाइज करके आना है और फिर आप थोड़े से हायर लेवल का पढ़ोगे। क्लियर हुआ? पढ़े सेट? ठीक है, Yes, miss. चलो ये नेक्स्ट। सो जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया उनको याद है ना, आपको 3 टाइम्स होमवर्क करके आना है। जिन्होंने किया है वो एक बार जस्ट रिविजन करके आ जाना, ठीक है? चलो लेट्स गो अहेड विद द सेकंड चैप्टर, दैट इज मैथमेटिकल मेथड। गिव द हेडिंग एज मैथमेटिकल मेथड। आवाज आ रही है ना आपको मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, miss. हाँ मिस। ठीक है, सो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ समझ लो। जो लोग मैथ्स छोड़ना चाहते हैं कि हमको आगे मैथ्स नहीं करना है, कुछ लोगों का ऐसा होगा, अभी आपके एडमिशन्स नहीं हुए हैं, तो जो लोग मैथ्स के साथ बिल्कुल कंटिन्यू नहीं करना चाहते उनके लिए चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आप ऐसी चीजें सीखने वाले हो मैथमेटिक्स की जो बेसिकली जो लोग मैथ्स लेंगे वो तो सीखेंगे, पर जो लोग मैथ्स नहीं लेंगे इस पार्ट में एक ऐसे मैथमेटिक्स इंक्लूड होंगे जो कि आपको ओवरऑल फिजिक्स में यूज आने वाला है इन 11th एंड 12th बोथ। तो मैम जो लोग मैथ्स ले रहे हैं उनको ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, इसमें ऐसी चीज आने वाली है जो आपको 12th में रिपीट होगी, तो आपको 11th में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो हर कोई कंसंट्रेट करने वाला है। नॉन मैथ्स वालों को इसलिए मैंने बोला कि कंसंट्रेट करना है क्योंकि उनका यही सहारा है मैथमेटिक्स को पकड़ने का। ये नहीं समझोगे, आप मैथ्स के स्टूडेंट भी नहीं हो, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, जितना भी मैथमेटिक्स में इसमें सिखाने वाली हूँ। इज दिस क्लियर व्हाट आई सेड एवरीवन? Yes, इज दिस miss. क्लियर? ऐसी बहुत सी चीज जो आपकी फिजिक्स में मैथमेटिक्स की यूज होती है, ठीक है? सो हम इस चैप्टर में बेसिकली वो मैथमेटिक्स सीखने वाले हैं जो फिजिक्स में यूज होती है। मैथ्स वाले जब मैथ्स में पढ़ेंगे तो बहुत हायर लेवल का पढ़ेंगे। तो बेसिकली पहले हमको बेसिक्स सीख के लेना है, तो जो लोग मैथ्स छोड़ने वाले हैं उनको इस चैप्टर पे कंसंट्रेट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज पूरा लाइफ अटके रहोगे और समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है, क्योंकि मैथ्स आपको होगा नहीं और यहाँ पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा। इसीलिए ये चैप्टर आपके बुक में इंक्लूड किया गया है कि आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स आ जाए, भले आप मैथ्स लो या मैथ्स ना लो, क्योंकि फिजिक्स विदाउट मैथमेटिक्स इज नॉट पॉसिबल। इज दिस क्लियर व्हाट आई सेड? Yes, miss. Yes, चलो miss. ठीक है, सो हमने लास्ट चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटी समझ लिया कि क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी। बताएगा कोई क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? समवन विल ट्राई। कितना बताओगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? Yes, miss. देख के बताओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन लुक इनटू योर बुक्स, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर इवन आप नोटबुक एक बार रेफर कर लेते हो, आई डोंट हैव इशू। क्या होता है बताओ बच्चों, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? Miss, a quantity which can be measured and by which we can explain various physical aspects in the meet. यस यस, सो बेसिकली सबसे पहला स्टेटमेंट है कि जो हम मेजर कर सकते हैं, दिस इज व्हाट वी टोल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी, राइट? यही हमने फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन पढ़ा था, राइट? अब हम ना थोड़ा सा फिर हमने फिजिकल क्वांटिटीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया। हमने कहा कि एक आपका फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, एक आपका डिराइव क्वांटिटी होता है। फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसको मेजर करने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती। डिराइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होते हैं जिनको मेजर करने के लिए फंडामेंटल का यूज किया जाता है। डू यू रिमेम्बर ऑल दिस थिंग्स?
Yes, रिमेम्बर miss. एवरीवन? Yes, miss. अब हम फिजिकल क्वांटिटीज को और डिफरेंट बेसिस पे डिवाइड करने वाले हैं, उनके और सेक्शंस बनाएंगे. नाउ व्हाट आर दोस? लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट. फॉर एग्जांपल आई सेड कि चलो अपना मास बताओ सबके सब. गर्ल्स, द क्वेश्चन इज नॉट वैलिड फॉर यू, ओनली टू द बॉयज. व्हाट इज योर मास? बॉयज तुम लोग बता सकते हो. लेट्स स्टार्ट विथ Krish. Krish, what is your mass? Krish, I'm talking to you. What is your mass? किया है कि नहीं डॉक्टर के पास जाके? नहीं बताना है? नहीं बताना है? 60. ओके. सो क्रिश का मास है 60 kg. 60 लिखो या 60 kg लिखो? साइंटिफिक बच्चे हो ना? यूनिट लिखना जरूरी है कि नहीं, या सिर्फ 60 लिख दूं? 60 ग्राम्स, 60 मिलीग्राम्स, 60 माइक्रोग्राम्स. सो आपको केजी इंक्लूड करना है. 60 बोलोगे तो मैं 60 मिलीग्राम लिख दूंगी, तब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, है कि नहीं? यही सीखा ना हमने लास्ट चैप्टर में. और कोई भी साइंटिफिक स्टूडेंट विदाउट यूनिट मुझसे बात नहीं करेगा. हाँ, कीप इट इन माइंड. वी शुड गो विद द फिजिक्स. जब फिजिक्स सीख ही रहे हैं तो फिजिक्स के साथ चलना भी सीख जाओ. चलो आगे जाते हैं. नेक्स्ट. चलो अब थोड़ा गर्ल्स को भी पूछते हैं, बेचारे बॉयज ही क्यों फंसे. कौन बताएगा? गोपिका बताएगी. गोपिका, व्हाट इज योर मास? 48 kg. बहुत पतली है गोपिका तू. 48 kg is less. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट कौन बताएगा? अमित. अमित तो देख के पतला पतला सा दिखता है. कितना हेलो. अमित, कितना मास है? 42, 43. देखा, मैंने कहा ना. सो अमित इज 42. लेट्स टेक 42. सो ऐसे 3 लोगों के मास तो पूछ लिया. अभी ज्यादा नहीं पूछूंगे, अदरवाइज लोग लेफ्ट हो जाएंगे. मैम ये क्या बेइज्जती कर रहे हो आप सबके सामने. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब मैंने मास पूछा, क्या कृष्ण ने बोला क्या मैम मैं लेफ्ट से 10 kg हूँ और राइट से बाकी का बचा हुआ 50 kg हूँ? किसी ने बोली ये बात? कृष्ण ने बोली क्या मैम लेफ्ट से 10 kg, नहीं, राइट miss. से 50 kg? गोपिका ने बोला मैम लेफ्ट से कितना 18 kg और बाकी का बचा हुआ 20 kg फ्रॉम द राइट. ऐसा किसी ने स्पेसिफाई किया गया? डायरेक्टली एक नंबर बता दिया. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू Yes, से? miss. जब आप लोगों ने मास बताया तो यहाँ पर किसी ने भी ये नहीं बोला कि लेफ्ट से दिस, राइट से दिस, लेफ्ट से दिस, राइट. कोई डायरेक्शन बताया गया आपने? सीधा आपने क्या दिया? सीधा आपने अपनी तरफ से मेरे पास क्या लाया? व्हाट वाज इट? इट वाज अ मैग्नीट्यूड, इट वाज अ नंबर. इज दिस राइट और नॉट? इज दिस राइट और Yes. नॉट? आई एम टॉकिंग टू एवरीवन. आई एम टॉकिंग टू एवरीवन. यहाँ पे जो लोग सिर्फ कैमरास ऑन करके बैठे वही लोग बात कर रहे हैं. बाकी लोग क्यों, आप लोग क्यों शांत हो? जिष्णु, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मिस. क्या बोला मैंने? व्हाट आई सेड? रिपीट करो. आपने बोला था वो एक साइड से 18 kg ऐसा कुछ नहीं होता. मैं अभी सुन रहा यस, था. सुन रहा था ना. मुझे ऐसा नहीं लगा, इसलिए तुम लोग है ना कैमरास ऑन कर दिया करो. मुझे ना तुम लोग पे विश्वास खत्म हो गया है. दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम. ये आपके सीनियर्स ने ऐसा किया है हमारे साथ कि वी डोंट बिलीव यू एनी मोर बिहाइंड द कैमरा. इफ इट इज पॉसिबल स्विच ऑन योर कैमरा. जो मेन कैमरा की ऑफ है. तुम लोग का आधा लेक्चर तो मेरा यही बोलते बोलते जाता है. आई वॉन्ट यू पीपल ऑफलाइन सो दैट ये कैमरा का टेंशन ही खत्म हो जाए मेरी तरफ से. ओके, सो व्हाट आई सेड कि जब हम लोगों ने मास के बारे में डिस्कशन किया, वी नेवर सेड समथिंग लाइक लेफ्ट से दिस मच, राइट से दिस मच. हमने डायरेक्शन कभी स्पेसिफाई नहीं किया. वी नेवर स्पेसिफाइड द डायरेक्शन. डायरेक्शन का कोई मीनिंग ही नहीं था ऐसी क्वांटिटीज में. हमने डायरेक्टली किसके साथ डील किया है? व्हाट वी हैव डील्ड विद, किसके साथ डील किया है? मैग्नीट्यूड. दैट इज अ नंबर. ठीक है. सो बेसिकली जिन क्वांटिटीज को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड के हेल्प से डिफाइन करवाई जाती है या सिर्फ और सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड के हेल्प से बताई जाती है. ऐसी क्वांटिटीज को, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी. क्या बोलते हैं बच्चों? व्हाट इट इज कॉल्ड एज?
What it is Scalar called as quantity. scalar quantity. So ऐसी क्वांटिटीज जिनमें आपको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नंबर काम करता है, ऐसी क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज में कंसीडर करते हैं. इज दिस एवरीवन क्लियर व्हाट आई सेड? सबको समझा मैंने क्या Yes. कहा? हाँ मिस. Yes, miss. कौन बोला? बोलो. आई कैन हियर यू. बोलो बच्चों, किसी को कोई डाउट है? आगे जाओ. ठीक, चलो लेट्स मूव अहेड. अब अगर मैं आपको बोलूं, इफ आई से कि डू वन थिंग, टेल मी द एड्रेस ऑफ कल्याणिस्ट रेलवे स्टेशन. कल्याणिस्ट का रेलवे स्टेशन का एड्रेस मुझे बता दो. तो सिर्फ ऐसा बोल दोगे तो चलेगा क्या? मिस यहाँ से 20 किलोमीटर, सिर्फ इससे काम चलेगा क्या? No, miss. No. आपको डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी है. अगर मैं डायरेक्शन नहीं बताती हूँ तो पता चला वो 20 किलोमीटर चलता चलता डोंबिवली पहुंच गया. दिस इज पॉसिबल, राइट? सो व्हेन आई नीड टू गिव एन एड्रेस, आई नीड टू डिफाइन द डायरेक्शंस. बिना डायरेक्शन के काम नहीं चलता. डायरेक्शन तो स्पेसिफाई करना ही पड़ेगा कि ठीक है, आगे जाके लेफ्ट मारो, फिर राइट मारो. अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर होगा, बट आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा. इज दिस करेक्ट और नॉट व्हाट आई सेड? इज दिस करेक्ट और नॉट? सो वेयर अलोंग विद द नंबर, आपको नंबर के साथ जहां पर डायरेक्शन भी बताना बहुत जरूरी होता है कि आप कहां पर बात कर रहे हो, क्या डायरेक्शन है उसका बात करते वक्त. अलोंग विद द मैग्नीट्यूड, along with the magnitude, आपको क्या बताना जरूरी है? What is necessary? What is necessary? Directions. Direction. Such quantities are considered, such physical quantities are considered into vector quantity. ऐसे quantities को हम बोलते हैं vector quantity. समझा? ये division समझा कैसा हो रहा है? Yes, सबको miss. clear हो Yes, रहा है? miss. तो when I say something is a scalar quantity, जब मैं किसी चीज को स्केलर बोलती हूँ तो ऐसी जगहों पर कभी भी एनी टाइम डायरेक्शन कोई मैटर नहीं करता, हमको सिर्फ नंबर से मतलब होता है. बट व्हेन आई से दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हमको तुरंत क्लिक करना है कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें मुझे नंबर के साथ क्या बताना बहुत जरूरी है. व्हाट इट इज रिक्वायर्ड. Direction. Direction. डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड. समझा? सो स्केलर क्वांटिटीज सिर्फ नंबर के साथ काम कर जाते हैं, पर वेक्टर क्वांटिटीज नहीं. वेक्टर क्वांटिटीज को बोलते वक्त आपको डायरेक्शन डिफाइन करना बहुत जरूरी है, वरना वो पूरा सिस्टम इनकम्प्लीट हो जाएगा. वो कुछ आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे पाएगा. कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा? Yes, miss. Yes, miss. Yes. ठीक है. सो लिखो जरा. लेट्स गो. अच्छा ठीक है, उससे पहले कुछ चीजें और समझ के लेते हैं जो आपने बेसिकली 9-10 स्टैंडर्ड में पढ़ा है, बट स्टिल चलो समझ के लेते हैं. स्केलर और वेक्टर के कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं. एड्रेस तो एक अलग एग्जाम्पल था, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द टर्म्स ऑफ फिजिक्स. सबसे पहली क्वांटिटी जो मैं आपको स्केलर की समझाने वाली हूँ, दैट इज अ डिस्टेंस. डिस्टेंस इज बेसिकली व्हाट? इट इज अ लेंथ. लेंथ ही है ना? डिस्टेंस तो लेंथ ही होता है. Yes, miss. Yes, क्या होगा miss. डिस्टेंस का? व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ अ डिस्टेंस? Meter. किसी ने मुझे पूछा नहीं कि मैम आप यूनिट तो पूछ रहे हो, आप ऐसा ही पूछ रहे हो कि सीजीएस पूछ रहे हो? दैट शुड बी इन योर ब्रेन, राइट? है ना? Yes, हाँ, miss. miss. Yes, miss. I am basically first I'll talk about SI only. So SI unit में it is meter and CGS unit में क्या होगा? It will be Centimeter. Centimeter. ठीक है. So the first quantity that we are going to study about is a distance, which is a scalar quantity. It means, let's take example. एक person है, यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है? A से B गया, B से C आया. This is 10 मीटर, this is also 10 मीटर. और फिर यहाँ पर उसने अपना काम खत्म किया और वो रिटर्न बैक होने लगा. फिर वो C से B गया और B से A आ गया. So as I said कि डिस्टेंस कैलकुलेट करते वक्त हमको डायरेक्शन मैटर करता नहीं है, हमको ये मैटर करता है वो कितना चला है, कितना डिस्टेंस, कितना टोटल अमाउंट उसने कवर किया है. वो सीधा चल रहा है, उल्टा चल रहा है, स्केलर क्वांटिटी को उससे फर्क पड़ता नहीं है. उसको सिर्फ किससे फर्क पड़ता है? स्केलर क्वांटिटी को सिर्फ किससे फर्क पड़ता है बच्चों? ओनली मैग्नीट्यूड. सो अगर मुझे किसी ने बोला
if someone said कि tell me the total distance covered by the object, please बच्चों ये distance पे जरा focus करो. Tell me the total distance covered by the object. So I will basically say 10 plus 10 plus 10 plus 10, मतलब टोटल वो कितना मीटर चला हुआ है? How much 40. meters? 40. 40 meters. So the distance covered is 40 meters. हमको यहाँ पर वो सीधा चल रहा था, उल्टा चल रहा था, हमको उससे फर्क पड़ता नहीं है. So distance is a scalar quantity. वो उल्टा चल रहा है, सीधा चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है, राइट चल रहा है, मुझे फर्क पड़ता नहीं. मुझे सिर्फ इससे फर्क पड़ता है वो कितना चला है, उसका नंबर, इसका अमाउंट चलने का कितना है. Only number I deal with. Is this everyone clear with this example? Yes, miss. Yes, yes, No problem in this? Sure. So Yes, miss. next स्केलर के और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि स्पीड. स्पीड का बताओ यूनिट क्या है? एसआई यूनिट. टेल मी द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड. Meter per second. मीटर पर सेकेंड. meter per CGS second. unit of speed. What is the CGS unit of speed? सेंटीमीटर पर Centimeter per सेकेंड. second. Centimeter per second. Centimeter per second. So again speed is a scalar quantity. स्पीड को भी डायरेक्शन से फर्क पड़ता नहीं है. Is this everyone clear what I said? Yes, miss. Yes, miss. अब एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से मैंने आपको बोला कि आज ना मैंने बहुत काम किया. I did a lot of work. I did a work of 15 joule. You know, work is measured in 15 joule, right? Did you specify the direction while saying that I did a work of 15 joule? Did you No. specify the direction? No. So work No. is also which quantity? Work is also which quantity? Scalar It is a quantity. Scalar scalar quantity. इतनी वर्क करते वक्त मेरे अंदर से 15 जूल की एनर्जी लॉस हो गई. किसने बोला? लेफ्ट हैंड से कितनी लॉस हुई, राइट हैंड से कितनी लॉस हुई, सर से कितनी लॉस हुई, पैर से कितनी लॉस Right. हुई? Did you said? What you said? No. What you said? सिर्फ 15 जूल एनर्जी लॉस हो गई. So what do you think? Energy is a scalar quantity or vector quantity? Scalar quantity. Scalar quantity. Is this clear what I'm trying to say? So when such things, these things which do not require the direction to be specified, कि भाई मैंने काम कर लिया is done. मैं लेफ्ट से कर रही हूँ, राइट से कर रही हूँ, वो मेरा मैटर नहीं है, मैंने काम कर दिया. So it becomes a scalar quantity. मेरे अंदर से इतनी एनर्जी खत्म हो गई, लेफ्ट हाथ से गई, राइट हाथ से गई, लेफ्ट पैर से गई, राइट पैर से गई, you never specify. So it is again a scalar quantity. When you talk about distance, it's a scalar quantity. When you talk about speed, it is a scalar quantity. Means इनको सिर्फ नंबर से फर्क पड़ता है, इनको डायरेक्शन से कोई फर्क पड़ता नहीं है. इनको बताते वक्त हमको डायरेक्शन को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते. Is this everyone clear? What is scalar quantity? Yes, miss. Yes, miss. चारों एग्जाम्पल सबको समझे हैं? जानवी, Yes, are you miss. there in the batch? Yes, miss. कैमरा की ऑफ है? समृद्धि, is it clear what I said? अमित, is it clear what I said? सबको क्लियर हो रहा है? अनीश, समझा? ठीक है, चलो अब जरा वेक्टर क्वांटिटीज इसी तरीके से समझ के लेते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द वेक्टर क्वांटिटीज. अब ये बात तो हमको समझ चुकी है कि जब मैंने एड्रेस का एग्जांपल लिया कि लेट्स टेक द पायल, आपको समझा मैंने क्या कहा? आपको क्लियर हुआ what I said? Yes. अगर बच्चों थोड़ा फास्ट किया तो लेट मी नो. हाँ, वैसे आई ट्राई माय बेस्ट कि आप लोगों की चीजें फास्ट ना जाए, बट स्टिल ठीक है. सो नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेक्टर क्वांटिटी. अब वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया कि लेट्स टॉक अबाउट द एड्रेस, बट फिजिक्स वाइज एड्रेस इज नॉट अ एग्जांपल फॉर वेक्टर क्वांटिटी. वो तो मैंने आपको समझने के लिए दिया कि जब आप एड्रेस बताते हो तो आपको डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी होता है. डायरेक्शन नहीं बताओगे तो वो पर्सन वहां पर नहीं पहुंच पाएगा. सो डायरेक्शन मैटर्स अ लॉट व्हेन यू से एड्रेस. सो आई जस्ट कोरिलेटेड इट विद द वेक्टर क्वांटिटी कि वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती है जिसमें अगर आप डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करते हो तो चीजें काम नहीं करती, फिर चीजें सही तरीके से नहीं चलती, चीजों की इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट हो जाती है. जैसे मैंने किसी को एड्रेस बताया और मैं उसको डायरेक्शन नहीं बता रही हूँ कि भाई तुझे एग्जैक्टली कैसे, तो उसके लिए वो जो पार्ट है वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन जैसा कुछ हो जाएगा.
सो वेक्टर क्वांटिटीज को भी अगर आप डायरेक्शन नहीं बताते हो तो समवेयर इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन. इज दिस क्लियर व्हाट आई सेड? सो वेक्टर क्वांटिटीज में आपको डायरेक्शन और नंबर, दैट इज डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, दोनों का बताना बहुत जरूरी है. सो इट शुड हैव डायरेक्शन एंड इट शुड आल्सो हैव मैग्नीट्यूड, तो ही इसका इंफॉर्मेशन कंप्लीट होता है, अदरवाइज इट इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन. इज दिस क्लियर? चलो, let's take the example. Let's take the example. The first vector quantity that I am going to discuss is displacement. Displacement is also a length, right? But it is the shortest length between final point and it is the shortest length between starting point and final point. Starting point and फाइनल. चलो पीछे वाला एग्जांपल लेते हैं. ए से स्टार्ट किया, कहाँ गए? बी पे. कितना कवर किया? 10 मीटर. बी से स्टार्ट किया, सी पे गए 10 मीटर. ठीक है. अच्छा, डिस्टेंस बताओ यहाँ पर कितना होगा? टेल मी द डिस्टेंस. 20 मीटर. 20 मीटर. और व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट भी स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट हियर? 20 मीटर. अब इसको जरा टर्न करवा देते हैं. लेट्स टर्न इट. अब ये वापस इसका काम हो गया सी पे, अब ये वापस जा रहा है. यहाँ से 10 मीटर, यहाँ से 10 मीटर. नाउ द डिस्टेंस हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, इट वाज 20 मीटर. लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट. अब जैसे कि मैंने कहा, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बच्चों. इसको डायरेक्शन फर्क पड़ता है, राइट? सो हम क्या करेंगे पता है? जब हम सीधे सीधे जाएंगे ना, हम उन नंबर्स को पॉजिटिव लेंगे. और जब हम थोड़े से भी, अगर हमने अपना डायरेक्शन उल्टा किया ना, we'll start taking the negative sign. कुछ समझे मैम? ऐसा होता है क्या? पॉजिटिव नेगेटिव हम अपने लिए ले रहे हैं कि सीधा सीधा चलो तो पॉजिटिव, अगर मुड़ गए तो नेगेटिव. ये किस लिए जरूरत है? डिस्प्लेसमेंट को समझाते वक्त जरूरत है. सो बताओ यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? 0 मीटर. समझे? क्योंकि जितना आप पॉजिटिव में चले उतना ही आप नेगेटिव में चले, और आपने टोटल आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 0. मतलब डिस्प्लेसमेंट बताते वक्त आप सीधे सीधे चल रहे हो या आप टेढ़े चल रहे हो, आपने अपना डायरेक्शन चेंज किया है, इस चीज को स्पेसिफाई करने के लिए ये माइनस साइन आ जाता है. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? मतलब यहाँ पर डायरेक्शन मैटर कर रहा है. अगर मैं सीधी चलती जाती तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, पर अगर मैंने मेरा डायरेक्शन चेंज किया, डिस्प्लेसमेंट तुरंत चेंज हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन बहुत ज्यादा फर्क क्रिएट करता है, वो तुरंत रिड्यूस करना स्टार्ट कर देता है. होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? मैम फिर डिस्टेंस तो है ही ना हमारे पास, हमको डिस्प्लेसमेंट की बुक को लेने की क्या जरूरत है? व्हाई वी वांट टू गो फॉर द वेक्टर क्वांटिटी? डिस्टेंस से तो काम चल ही रहा था ना, डिस्प्लेसमेंट क्यों लेना है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग अ डिस्प्लेसमेंट? व्हाई वी नीड टू स्टडी द डिस्प्लेसमेंट? सो बच्चों, यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ डिटेल जब आप ना नेक्स्ट एग्जांपल को समझोगे कि क्यों हम लोगों को डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ऐसे दो क्वांटिटीज अलग अलग बनाकर पढ़ना पड़ा. You understand it? You will understand this concept in when I will discuss velocity with you. क्यों हमको एक को स्केलर के साथ काम करवाना पड़ा और एक को वेक्टर के साथ काम करवाना पड़ा? ठीक है? Is this clear what I said? Is this clear what I said? Let's understand. The first example is displacement. Next is, let's take the next example, velocity. अब ये आपको बहुत कुछ समझाएगा कि वेक्टर स्पीड was a scalar quantity और वेलोसिटी करके वेक्टर क्वांटिटी क्यों पढ़ना पड़ा. एक ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कल, और एक ऑब्जेक्ट ऐसे सीधा सीधा चल रहा है. या लेट्स नॉट गो टू द सीधा सीधा, यही लेते हैं, एक ही एग्जांपल लेते हैं. एक ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है विथ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड.
कांस्टेंट व्हाट? मैग्नीट्यूड। मतलब समझ लो लेट्स से उसका स्पीड इज 2 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच इज द स्पीड ऑफ दिस पर्सन? 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर 2 सेकेंड। meter per second. But can you say that, चलो वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी में तो दो चीजें होंगी, एक होगा आपका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो हमको स्पीड से पता चल गया, राइट? मैग्नीट्यूड तो हमको स्पीड से पता चल गया कि इट इज 2 मीटर पर सेकेंड। बट व्हाट अबाउट डायरेक्शन? व्हाट अबाउट डायरेक्शन? डू यू थिंक इट इज कंटिन्यूअसली मूविंग इन सेम डायरेक्शन? No. No, Yes. miss. No, miss. No, at every point it is changing the direction. Just look at the part. कभी ऐसा जा रहा था, फिर ऐसा जाने लगा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ स्पीड डिस्कस करके चलेगा क्या? यहाँ पे सिर्फ स्पीड डिस्कस करके चलेगा क्या? No, miss. No, miss. यहाँ पर हमको बोलना पड़ेगा कि डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट इज चेंजिंग। So when an object is moving in a circle, speed is constant. Of course, it is a uniform circular motion, UCM way. Speed is constant, but can I say that velocity is constant? No, No, miss. miss. No. तो इसीलिए हम लोगों को स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग पढ़ना पड़ा कि स्पीड ओनली डिस्कस अबाउट द मैग्नीट्यूड, बट वेलोसिटी समवेयर डिफाइंस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। कुछ जगह होंगे जहां पर स्पीड एकदम आपको कांस्टेंट मिल जाएगा, बट जब आप वेक्टर क्वांटिटी के टर्म्स में बात करना स्टार्ट करोगे तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वो क्वांटिटी चेंज होती हुई दिखेगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, miss. Yes, ma'am. तो हम लोगों का डायरेक्शन डिपेंडेंसी हमको पता होना चाहिए, इसीलिए हमको वेक्टर क्वांटिटी करके अलग से पढ़ना पड़ रहा है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि भाई ठीक है उसने 40 मीटर्स कवर कर लिए, 40 मीटर्स कवर कर लिए, क्या मैं कहीं भी स्पेसिफाई कर पाऊंगी क्या वापस वो ए पे आ गया है? वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है, मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, इन द सेंस उसने अपना डायरेक्शन चेंज करके वापस वो पीछे आ चुका है। दिस इज व्हाट इट इज एक्सप्लेनिंग। तो आपको डायरेक्शन बताने से चीजें और इंफॉर्मेटिव हो जाती है और आप चीजों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। अगर मैंने सिर्फ इतना बोल दिया कि उसने 40 मीटर कवर किया है, लेट्स टेक एग्जांपल, मैंने सिर्फ इतना बोल दिया उसने 40 मीटर कवर किया है, 40 मीटर तो सीधा सीधा भी कवर कर सकता है ना, है या नहीं? Yes. Yes. तो अगर मैंने उसको बोल दिया कि उसने 0 डिस्प्लेसमेंट किया है, मैं सीधा मेरे दिमाग में आ जाएगा ठीक है जितना वो आगे चला था उतना वो पीछे आके अपने घर पे पहुंच चुका है। Yes, miss. Yes, ma'am. अब चीजें बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है। हम लोग ये सारी चीजें फिलहाल सिर्फ आपको ये याद रखना है, ये सारे एग्जांपल्स मैं वापस डिस्कस करूंगी कि क्यों वेक्टर क्वांटिटीज का होना जरूरी है स्केलर क्वांटिटीज के साथ साथ। फिलहाल आपको सिर्फ दिमाग में इतना रखना है, व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर। स्केलर इज समथिंग जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड, वेक्टर इज समथिंग जिसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर रिक्वायर्ड। मिस बोलो मिस इलेक्ट्रिक करंट का बताओ ना एक बार। बेटा, इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली अभी के लिए ना आपको इट्स एक्चुअली एक और क्वांटिटी होती है, देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ क्वांटिटी व्हिच इज कॉल्ड एज टेंसर। थोड़ा सा, बहुत थोड़ा नहीं, एक्चुअली बहुत हायर फिजिक्स होता है वो। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इट्स अ टाइप ऑफ थर्ड क्वांटिटी व्हिच इज नोन एज टेंसर। सो अगर टेंसर ऑप्शन में नहीं आता है तो हम उसको स्केलर टिक करते हैं, क्योंकि इट इज टेंसर विथ अ जीरो ऑर्डर, जिसको हम स्केलर के टर्म में थोड़ा सा डिफाइन, ठीक है, उतना डिटेल में नहीं जाना है। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। वो स्केलर भी नहीं है और वो वेक्टर भी नहीं है, ना वो स्केलर है ना वो वेक्टर है। तीसरी क्वांटिटी भी होती है जिसको हम टेंसर बोलते हैं, आपको नहीं है वो, आपको वो दूर दूर तक नहीं है। जब आप इंजीनियरिंग फील्ड में एंटर करोगे ना तब वो आपके पिक्चर में आएगा। तो अगर आपके ऑप्शन दिए हैं उसमें टेंसर वर्ड आता है तो यू हैव टू गो अहेड विद द टेंसर। टेंसर वर्ड नहीं आता है तो चुपचाप से स्केलर टिक करके साइड हो जाने का, मैम उसमें क्योंकि और वेक्टर बोला आई कैन हियर यू, बोलो। मतलब अभी उसमें टेंसर में इलेक्ट्रिक करंट आया तो उसमें वैसा और क्या क्या होता है? बहुत सारी चीजें हैं, देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच कम्स अंडर टेंसर, बट वो सारी चीजें आपको फिलहाल इन्वॉल्व नहीं। देयर इज अ वेव फंक्शन, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स। अभी फिलहाल आपको वो सब चीजों पे नहीं जाना है, आपको टेंसर पे जाना ही नहीं है, मैं टेंसर डिस्कस ही नहीं करूंगी।
क्योंकि मैं अगर आपको टेंसर डिस्कस करूंगी ना तो आपको स्केलर वेक्टर भी नहीं आएगा, वो उसके रैंकिंग पे डिसाइड किया जाता है, and what is that ranking and everything, it goes to very higher physics, very higher physics actually. So you don't have to think about those things now. फिलहाल आपको उन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना है, आपको सिर्फ स्केलर वेक्टर सोचना है। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट आप लोगों ने पूछ लिया क्योंकि काफी फेवरेट क्वेश्चन ये में से रहा है। ये लोग उसको बेसिकली सोचते हैं कि इट सिंस आपका इलेक्ट्रिक करंट हो चुका है तो आप लोगों को लगता है कि आप लोग उसको डायरेक्शन वगैरह देते हो तो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, बट इट इज नॉट। वेक्टर तो बिल्कुल नहीं है। अगर आपके ऑप्शन में टेंसर नहीं है तो आपको सिंपली स्केलर के साथ जाना है, वेक्टर तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि वेक्टर कहलाने के लिए आगे हम पढ़ेंगे कि वेक्टर होने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अगर वो रूल्स कोई चीज नहीं फॉलो करती तो उसको हम वेक्टर के बीच में नहीं, वेक्टर के अंदर नहीं डालते। विल स्टडी दैट कि व्हेन समथिंग इज कॉल्ड एज वेक्टर। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट फॉलो दैट रूल, वो रूल वो फॉलो ही नहीं करता, इसीलिए उसको वेक्टर में नहीं डाला जाता। इज दिस क्लियर? सो विल डोंट गो टू दैट। Is this everyone clear what is scalar and vector? ये clear हुआ सबको? Yes. तो इनके एग्जांपल्स के बारे में और ज्यादा आगे पढ़ेंगे in the next lecture. Bye everyone, take care. Bye. इसे लिखना है। Thank you.